Yes. So now I request Anita ji to begin with the class today. Before that, yes, after the class is over, please stay with us for few of experience sharing, which you will be telling us the good things and shortcomings of the course, how we can improve and how we can do better. And after that, we will be having a discussion with Nidhi ji as well. So yeah, over to you, Sanita ji. We can begin with the class today. जी अंशुल जी, नमो नमः. uh, yeah. Namo Namaha. Suprabhatam. A very good morning to one and all present here. So yes, welcome to the very last day of this course. And yes, before starting the course, I would like to tell a few things about today's course. Is today's last day is yes, there are some things which are to be sent to all of you, including yesterday's content. So after this, after today's class, we will be sending it to you. Today's content, yesterday's content, as well as a few more things, a few more documents which will be useful for all of you for your further studies or for your references. Okay. Yes. So this was one thing I wanted to share. Second thing is before few days I told a shlok to all of you, that was anarambho hi karyanam prathamam buddhi lakshanam prarambhasyanta gamitvam dvitiyam buddhi lakshanam, which meant that the first characteristic of our brain is not to start anything, and the second one is once if you start it, take it to its end. Okay. So yes, I congratulate all of you who are here, and they have successfully completed the whole course almost. Okay. So thanks a lot and congratulations to all of you. Abhinandanani. Okay. After this course, yeah, many of you must be having questions कि हम लोग पढ़ पाएंगे क्या संस्कृत, हम लोग संस्कृत लिख पाएंगे क्या, बोल पाएंगे क्या. तो उसके लिए मेरा उत्तर यह है आप सबके लिए कि पूरा ही संस्कृत पढ़ने आएगा ये थोड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आप कोशिश कर सकते हैं. आप कोशिश किस चीज से करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो भगवत गीता के सिर्फ कुछ श्लोक पढ़िए. पढ़िए, समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, सिर्फ पढ़ना शुरू कीजिए. ओके. वहां से शुरू होता है. अगर किसी के पास और भी कोई संस्कृत बुक्स है, डोंट गो डायरेक्टली टू एनी काव्याज. कोई भी काव्य पढ़ना शुरू मत कीजिए, आप ज्यादा अभी के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे. आगे जाकर काव्य पढ़ना विल बी अ बिट इजी अभी से. तो फॉर नाउ यू कैन जस्ट स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता. समझ में आता है नहीं आता है, दैट्स अनदर थिंग. द मोस्ट important thing is you know how to pronounce that particular thing, because Sanskrit also helps us to improve our pronunciation. That is the most important thing. जैसे मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे. Avijit ji, you can use NCERT books, but the thing is, they have Dvivachan also, and which we haven't seen over here now. So if you're not going to get confused, you may use it. It's your call at last, but I would just prefer that don't use it for now. You will get a bit confused for now if you can't understand द्विवचन. अगर आपको उस टाइम पे एकदम समझ में नहीं आता तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सो फॉर नाउ जस्ट रीड अ फ्यू थिंग्स, जैसे भगवत गीता है या कल्याण मैगजीन है या और भी कोई चीजें हैं जो, या फिर जो अब तक हमने मटेरियल आपको भेजा है, just go through it. That's enough for now at least. Okay. Okay, fine. So we'll start with the class. Anshul ji, shall I share the screen, or you are sharing? You can share because I may have to add a few people. Okay. Yeah, So yeah, yeah. I Right, have right. to Okay, need my fine. system on. I, yeah, yeah. I'll share it. I'll share it. Okay. Just give me a minute. I'll share my screen. Okay. Anshul ji, just let me know once my screen is visible. Yes, it is visible. It is visible. Yeah, okay. Dhanyawada. So Hmm. first of all, yesterday we saw a few of these अव्ययानी. अव्ययानी क्या होता है, जिसका व्यय नहीं होता है. ठीक है. और जो सारी विभक्तियों में एक समान ही रहता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी वर सीइंग. हमने कल च देखा, जो जिसमें याद रखने जैसा क्या है हमने देखा था.
कि इसका प्रयोग समुच्चय, ठीक है, समुच्चय के अर्थ में च का प्रयोग होता है, और उसको हम कहाँ जोड़ते हैं, हम च को अंत में जोड़ते हैं, ठीक है। फिर हमने उसकी कुछ उदाहरण देखे थे, ठीक है। फिर हमने देखा था अपि, ठीक है, अपि मतलब भी, ठीक है। फिर है एव, ठीक है। एव भी हमने देखा था, हम एक बार फिर एव देखेंगे और फिर आगे जाएंगे। ज्ञानम एव अस्माकम वास्तविकम नेत्रम, ज्ञान ही हमारे वास्तविक नेत्र है, ठीक है। वैसे ही जनाः संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्ति एव, लोग संस्कृत में संभाषण करते हैं ही, ठीक है, या फिर करते ही है, ठीक है। अब एव में एक चीज याद रखने जैसी ऐसी है कि एव ना, जैसे हम एव का प्रयोग करते हैं ना, वैसे उसका अर्थ भी थोड़ा सा बदलता है, वाक्य का अर्थ। जैसे अगर मैं बोलूं ज्ञानम अस्माकम वास्तविकम नेत्रम एव, ज्ञान हमारा वास्तविक नेत्र है ही, इसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है जब हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे तब। अगर हम कहे कि ज्ञानम एव अस्माकम वास्तविकम नेत्रम, तो उसका अर्थ क्या है, ज्ञान ही हमारा वास्तविक नेत्र है, ठीक है। वैसे ही जनाः संस्कृतेन एव संभाषणं कुर्वन्ति, मतलब क्या, लोग संस्कृत में ही संभाषण करते हैं, ठीक है। तो अर्थ बदल गया ना, कि वो और कोई भाषा का उपयोग करते ही नहीं है, सिर्फ संस्कृत में संभाषण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एव का प्रयोग करते हैं, तो वो हमें याद, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। हमने इसके थोड़े एग्जांपल्स देखे थे, तो और थोड़ा सा आगे जाएंगे और इति देखेंगे। हमने जो संवाद देखा था जब हम भूतकाल देख रहे थे कल, कि वैद्यः उक्तवान् अजीर्ण कारणेन, अजीर्ण कारणेन, जो वो वाक्य था उसमें वैद्य ने ऐसा कहा, इति वैद्यः उक्तवान्, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो क्या है वो हम अब देखेंगे, ठीक है। Anshul ji, meanwhile, if there are any questions related to this topic, please let me know, as I can't see the chat box Okay, okay, okay. I'll let you know. Hmm. for now. Hmm. Yeah, okay, धन्यवादः। इति, ठीक है। संस्कृतम एव राजभाषा, एव राजभाषा इति इति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरः अचिन्तयत्। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या कहा कि संस्कृतम एव राजभाषा भवेत्, संस्कृत जो है वही राजभाषा होनी चाहिए, ऐसा ऐसा चिंतन उन्होंने किया, ठीक है। फिर क्या है, बालाः एव राष्ट्रस्य संपत्तिः, ठीक है, बच्चे जो है वही राष्ट्र की संपत्ति है। इति अस्माकं राष्ट्रपतिः पुनः पुनः कथयति, ऐसा हमारे राष्ट्रपति बार बार कहते हैं, ठीक है। और परिश्रमेण एव साफल्यं प्राप्यते इति सर्वे कथयन्ति, परिश्रम के द्वारा ही हम सफलता को प्राप्त करते हैं, ऐसा कौन ऐसे ऐसा सब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझनी जैसी ये है, जो तीनों वाक्य में समान है, कि कोई एक वाक्य किसी की तो किसी ने तो कहा है और वहां से हमने उद्धृत किया है वो एक वाक्य, ठीक है, या तो फिर किसी पुस्तक में से हमने किया, या किसी का अगर कोई भाषण चल रहा है तो उसमें से उनका वही वाक्य उसी रीत में हमने वहां से उठा के उद्धृत करके हमने हमारे एक वाक्य में डाला है, तो वहां पे हम उपयोग करते हैं इति का। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अब हम देखेंगे अवधेयम में, ठीक है। यदा कस्यापि अन्यस्य जनस्य ग्रंथस्य वा, ठीक है, जब हम कोई भी अन्य व्यक्ति के या किसी ग्रंथ का वाचन, वचनम, एक्चुअली वचनम कथनम संदेशः, उनका कोई वचन हो, उनका कोई कथन हो, या उनका कोई संदेश हो, इति आदीनाम, इन चीजों का उद्धरणम क्रियते, उद्धरण करते हैं, तदा तब वचन कथन संदेशादीनाम, वचन कथन और संदेश उनके, या फिर संदेश उनके अंत में इति अव्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि
संस्कृतम एव राजभाषा भवेत्। ये हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने ये सोचा है, उनके किसी उनके किसी बुक में से, उनकी किसी पुस्तक में से हमने अगर ये वचन लिया है तो हमने वो वचन वैसे ही उद्धृत किया है और अंत में इति लगा के फिर वो किसने कहा है वो हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, जैसे बालः एव राष्ट्रस्य सम्पत्तिः इति अस्माकं राष्ट्रपति पुनः पुनः कथयति। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी ने अपने किसी इसमें कहा है कि बालः एव राष्ट्रस्य सम्पत्तिः, बच्चे वही राष्ट्र की संपत्ति है। ठीक है, तो तब हम ये कहते हैं। ठीक है, फिर इति अव्ययात् पूर्वम वचनम कथनम वा यथावत उच्यते। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि इति अव्यय जो है उसके पहले के जो वचन जो हम कहीं से उद्धृत करते हैं वो जैसे वहां पे होते हैं वैसे ही हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी ने जैसे बालः एव राष्ट्रस्य सम्पत्तिः, अगर ये वाक्य इसी तरह से कहा गया है उनके भाषण में तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी उद्धृत करेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, तब हम इति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अहम अद्य एव मिलामि इति रामः अवदत्, मैं आज ही मिलूंगा, ऐसा किसने कहा? ऐसा राम ने कहा। ठीक है, इस तरह से हम इति का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इति शब्दं प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। ठीक है, अहम अद्य एव कार्यं पूर्णं करिष्यामि, नवीनः अवदत्। ठीक है, नवीन ने क्या कहा कि मैं आज ही ये कार्य पूर्ण करूंगा। ठीक है, ऐसा नवीन ने कहा। तो अगर मुझे इसमें इति लगाना है तो मैं आपको ये उदाहरण के तौर पर बताऊंगी। अहम अद्य एव कार्यं पूर्णं करिष्यामि इति नवीनः अवदत्। ठीक है, इति नवीनः अवदत्, ऐसा नवीन ने कहा। ठीक है, सत्यम एव जीवनस्य आधारशिला महात्मा गांधी अचिन्तयत्, महात्मा गांधी जी ने क्या चिंतन किया? सत्यम एव जीवनस्य आधारशिला। ठीक है, सत्यम एव जीवनस्य आधारशिला इति महात्मा गांधी अचिन्तयत्। ठीक है, ओके, राष्ट्राय इदं न मम। ठीक है, श्री गुरुजी अचिंतितवान। ठीक है, Anshul ji, can you just take a name who will just try telling this sentence using iti? Okay, Jhelam Vora ji. Can you hear Jhelam Vora ji? No, Arpan Gautam. Am I audible, Sanidha ji? Yes, you are audible, Anshul ji. Okay. Anshul ji. Arpan Gautam, can you try? Yeah, is it okay if you try? Wait, I didn't actually. I was adding someone else, so I didn't focus here. Hello. Okay. Can I try? Tanmay ji, you can Yeah. try. Yeah. Yes, So, please try. राष्ट्राय इदं न मम इति श्री गुरुजीः चिन्तितवान्। उत्तमं, शोभनं, धन्यवादः। भवन्तः मह्यं रक्तं यच्छन्तु, अहं भवद्भ्यः स्वातन्त्र्यं दास्यामि, सुभाषचन्द्र बोसः उद्घोषितवान्। ठीक है, ओके, हु विल ट्राई दिस? Gauri ji is trying. Yeah. Karwale. Okay. Yes, sir. भवन्तः मह्यं रक्तं यच्छन्तु, अहं भवद्भ्यः स्वातन्त्र्यं दास्यामि इति सुभाषचन्द्र बोसः उद्घोषितवान्। धन्यवादः, उत्तमं गौरी महोदया, सत्यमस्ति। अस्तु, बालाः धरायाः पुष्पाणि रवीन्द्रनाथ टागोरस्य चिन्तनम् आसीत्। Who will try this? Sakshi ji is trying now. Sakshi girl. Yes. Yeah. बालाः धाराया पुष्पाणि इति रवीन्द्रनाथ टागोरस्य चिन्तनम् आसीत्।
उत्तमम। हाँ, बालाः धरायाः, धरायाः इस धरती के। बच्चे जो होते हैं वो धरती के फूल है, ऐसा श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। ठीक है, सोचा है। धन्यवाद। अस्तु। हाँ, तो ऐसे हमने देखा इति। ठीक है, वैसे ही थोड़ा सा आगे हम जाएंगे और हम यत देखेंगे। अब यत क्या है, पहले हम वाक्य पढ़ते हैं, वो इति का थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, कैसे है हम देखते हैं। एवं एतत् न शक्यम इति मा वदतु। ठीक है, ऐसा यह शक्य नहीं है, ऐसा मत कहो। ठीक है, तो इति मा वदतु, ऐसा हमने इति का वाक्य देखा। अब जब हमें यत कहना है तो हम क्या कहेंगे, मा वदतु, ऐसा मत कहो कि एतत् न शक्यम, कि यह शक्य नहीं है। ठीक है, मया न ज्ञायते, मुझे नहीं पता, इति सा उक्तवती, ऐसा उसने कहा। ठीक है, सा उक्तवती, उसने कहा कि मया न ज्ञायते, यत् मया न ज्ञायते। ठीक है, कि मुझे नहीं पता। समझ आया। जैसे हम इति में उक्ति, जो जिसकी भी उक्ति थी वो पहले लेते थे, उसके बाद इति लगाते थे और फिर कहते थे वो किसकी उक्ति है। ठीक है, और जब हम यत लगाते हैं तो पहले हम कहते हैं कि उसने कहा कि ऐसा ऐसा है। ये एक यत और इति में हमें ध्यान देना है। नीचे का वाक्य देखेंगे और एक, सत्यमेव जयते इति मुंडकोपनिषद वदति। मुंडकोपनिषद जो है वो क्या कहता है, मुंडकोपनिषद वदति यत् सत्यमेव जयते। ठीक है, जी, मुंडकोपनिषद एक प्रश्न जो है सनिता जी, मया, जी, व्हाट इज मया? मया मया न ज्ञायते। मुझे नहीं पता। मया इज अगेन सर्वनाम है, वो भी इट्स ए प्रोनाउन। मुझे नहीं पता के अर्थ में हम मया न ज्ञायते, मया यूज करते हैं। जी, या मुंडको उपनिषद वदति यत् सत्यमेव जयते। ठीक है, मुंडको उपनिषद कहता है कि सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ओके, अब हम देखेंगे इसमें क्या हमें याद रखना है। इति इत्यस्य प्रयोग द्वारा यत् उच्यते तत्। ठीक है, इति के प्रयोग के द्वारा जो हम कहते हैं वो यत् पदयोगेन अपि वक्तुम शक्यते, वो हम यत् के उपयोग से भी कह सकते हैं। जैसे हमने देखा, लोके भिन्न रुचि ही इति पंडिताः वदन्ति। पंडिताः वदन्ति यत् लोके भिन्न रुचि। तो एक इजी चीज, एक इजी शॉर्टकट जिससे हम इसे याद कर सकते हैं कि इति का प्रयोग हम कब करते हैं। इति हम कब, जब हम पहले वो उक्ति जो है वो लेते हैं और फिर वो किसने कहा है या फिर वो किसने सोचा है, वो या फिर वो कौन सी पुस्तक में है वो कहेंगे। या फिर अगर हम यत का उपयोग करते हैं तो वो किसने, उसका चिंतन किन्होंने किया है, फिर या तो फिर वो कौन सी पुस्तक से लिया है वो पहले कहेंगे, फिर बीच में हम यत को जोड़ेंगे और फिर क्या कहा है वो कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर ये बताऊंगी वाक्य, ईशावास्यमिदं सर्वम इति ईशावास्योपनिषदः कथनम अस्ति। हाँ, तो इसका अगर मुझे यत में परिवर्तन करना है, इस वाक्य का अगर यत का उपयोग करना है मुझे इति की जगह पर, तो मैं क्या कहूंगी, ईशावास्योपनिषदः कथनम अस्ति यत् ईशावास्यमिदं सर्वम। ठीक है, और उदाहरण देखेंगे। ठीक है, क्षम्यताम क्षम्यताम इति अनुजः अवदत्। ठीक है, ओके, हु विल ट्राई दिस सेंटेंस? Ma'am, I will try. या प्लीज ट्राई। Yeah. Anujaha avadat yat kshamyatam. उत्तमम, यस उत्तमम, सत्यम अस्ति। धन्यवादः. धन्यवादः। अस्तु, नेक्स्ट इज आगच्छतु आगच्छतु इति गृहस्वामी अवदत्। हु विल ट्राई दिस? Ma'am, I will try. या प्लीज ट्राई। Ma'am, it will be Grihaswami Avadat Yat Agachantu Agachantu. उत्तमम, आगच्छतु आगच्छतु, उत्तमम, सत्यम अस्ति, धन्यवादः। अस्तु, शीघ्रं शीघ्रं चलतु इति पिता कथयति। हु विल ट्राई दिस? रुचिरा जी, रुचिरा जी। हेलो,
Yeah. मैम पिता कथयति यत् शीघ्रं शीघ्रं चलतु. उत्तमम् उत्तमम्. धन्यवादः. वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावना विश्वशान्तेः मूलम् अस्ति. Okay, I'll do this for you. Okay, Lalita ji, please try. Yes, I will try. भावना विश्वशान्ते मूलम् अस्ति यत् वसुधैव कुटुम्बकम्. Uttamam, good try. But actually, this is a bit tricky sentence. I'll try this. Okay, I'll tell you how to do it. You will generally not face this problem, but I have purposefully taken this to make you understand. We have these type of sentences also. Vishwashantehe bhavana, Vishwashantehe moolam bhavana asti yat vasudhaiva kutumbakam. विश्वशांति की मूल भावना है कि वसुधैव कुटुम्बकम. ठीक है, ऐसा कहना है. ठीक है, so this way we saw ऐसे इस तरीके से हमने अव्यय देखे. ठीक है. Okay, so almost all the topics for the important topics for spoken Sanskrit are done. Okay, now what are we going to do is we are just going to revise. I'll just take you through all the topics we have done. Okay, so that we all will get an idea. Okay, fine. Yeah, okay. So first thing is we did mama nama. Okay, हम परिचय अपना कैसे देंगे. ठीक है. Yeah. मम नाम संहिता अस्ति. अहम पुण्यपत्तने वसामि. फिर अहम शिक्षिका अस्मि. ठीक है, इस तरीके से मैं अपना परिचय दूंगी जो हमने सबसे पहले दिन देखा था. ठीक है, दैट इज हमारे कोर्स का सेकेंड डे से हमने स्पोकन संस्कृत शुरू किया था. उसके बाद हमने प्रोनाउंस देखे. सह, एषः, सह, कः. ठीक है, एषा, सा, का, एतत्, तत्, किम. ठीक है, हमने ये सब देखा था. उसके बाद फिर हमने बहुवचन देखे थे. उसके बाद हमने आई जस्ट रिवाइज ऑल द टॉपिक्स फर्स्ट सो दैट इट विल बी क्लियर कि हमने ये सारे टॉपिक्स किए हैं. आफ्टर दैट ऑन द सेम डे वी सॉ षष्ठी विभक्ति कि तस्य, रामस्य, सीतायाः. ठीक है, पुस्तकस्य इत्यादि हमने देखा था उस दिन. फिर आफ्टर दैट वी अगेन सॉ सप्तमी विभक्ति फिर हमने देखी जिसका उपयोग हम कैसे करते हैं. पुस्तके, हस्ते, हाथ में, पुस्तक में. फिर चमसे, ये हम इन सब का उपयोग कैसे करते हैं. सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि यस जस्ट गो थ्रू all those things whenever you get time or whenever you feel you need to revise something or you need to learn something new. Just go through those all documents again and you will get a new idea. You will again understand something what you did not understand when we were actually learning. Okay. Yes. And we also saw a few songs. Surasa Subodha, Vishwamanoknya. We saw a song for our small kids, and that is Ekah Shugalah, which all of you loved. Sasadatam Smaraniyam. And yes, we also saw only 2 lines of Chataka Chataka. If time permits today, I'll certainly tell that song to all of you. And yes, I'll send the lyrics and the shlokas we did yesterday for your reference or for learning it. Okay. So Anshul ji,